Assalamu alaikum and good morning, everyone. Uh, I'm going to start the session without any delay, and rest of the participants will join us as they come. So, our today's agenda is that we are going to cover two readings. The first reading is Information System Design and Implementation Strategies for Success. The second reading is the sources of success and failure of information technology projects, the project manager's perspective. Now, this reading is from the next week topic, but we are going to cover it this week in today's lecture. So, and then we are going to discuss two case studies of our topic, information system design and its capabilities. And these two case studies are, first one is the Internal Revenue Service Automated Collection System. And the second case study is the Pharmacy Service Improvement at CVS. So let's begin with the discussion of the first reading, that is Information System Design and Implementation Strategies for Success. Now, if you look at the top of this article is quite old, dated back to 1982. But most of the strategies and the points that have been discussed in this article are still relevant today. So, if you read the first highlighted paragraph, as you can see on your screen, it says every human services organization has an information system which may be implicit or defined, simple or sophisticated, manual or automated. Okay, so one thing that is clear from this first line is that every organization has some sort of information system. और ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये ऐसा भी हो सकता है कि डिफाइंड ना हो और ये भी हो सकता है कि डिफाइंड हो. कहने का मतलब जो है वो ये है कि काम हो रहा होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस हो रही होती है, लेकिन इनफॉर्मली जो है रही होती है, जिसको क्या कहते हैं ना, आपके कोई डिफाइंड सिस्टम जो है वो नहीं होता. ठीक है. Similarly, this same information system can be simple or sophisticated. ठीक है. और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस फर्स्ट लाइन में जो है वो हाईलाइट की गई है वो ये कि दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी मैनुअल और ऑटोमेटेड. सो ये कन्फ्यूजन हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम हमेशा कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करता है. ठीक है. An information system in the organization may or may not use the computers. That is, the information system in any organization may or may not be automated. That is, may or may not use computers. So kindly remember this very important fact. Okay. The second line states that not every information system, however, efficiently provides managers with the information needed for effective planning and agency administration or for responding to the increasing and changing requirements for accountability and program justification. Now, this line tells us many important objectives of an information system that any organization uses. First is that this information system uh, efficiently provides managers with the information they need for the effective planning and administration of the organization's affair. The information system, uh, the information provided by the information system is also used by the managers of the organizations to respond to the increasing and changing requirements for accountability and the various program justification that an organization can undertake. So, uh, one or two takeaways that we have taken from us by this discussion is that first, what an information system is, and one important distinction that we have made here is that an information system may or may not use computers.
And number two, we have discussed that what are the benefits or what are the objectives of introducing information systems in any organization. Now here in this article, they have used the word MIS. Okay, so whenever I am going to discuss the concept of the information system, so whether I say MIS, that is Management Information Systems, or I just say information system, right? Consider it synonymous. So MIS or information system, right? For the sake of our discussion, is the same thing. Moving forward, on the page 2 of this article, the author writes, there is no single ideal approach to MIS design given the uniqueness of each organization. There are, however, general design strategies applicable in any setting which assure a greater likelihood of success. So हमें ये बात समझनी होगी कि जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिज़ाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई एक सिंगल बेस्ट अप्रोच नहीं है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिज़ाइन कर सकें। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं वो यूनिक होती हैं, ठीक है? सो हम एक ही अप्रोच को, मतलब दैट इज वी कैन नॉट यूज वन सिंगल approach to MIS design in every organization. We have to actually customize it to suit each organization. लेकिन ऑथर ये कहता है कि यहाँ पे कुछ जनरल डिज़ाइन स्ट्रेटजीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं टू डिज़ाइन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. And when we use these design strategies, these general design strategies, तो उसका जो हमें बेनिफिट हासिल होता है वही हासिल होता है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, उसका जो डिज़ाइन है, उसकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है. इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, देन दिस आर्टिकल डिस्कसेस दैट व्हाट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज. वी आल्सो डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट? लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जब बात करूंगा MIS की या जब मैं बात करूंगा इंफॉर्मेशन सिस्टम की, सो दीज टू टर्म्स विल बी टेकन सिनोनिमसली. सो यहाँ पे ऑथर ऑफ द आर्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है MIS को, ठीक है. So what the article says that an MIS is a management tool, a well-designed system that will facilitate planning, evaluation and decision making on a variety of level. ये वो चीज़ें थी कि जो कि हमने शुरू में डिस्कस की कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसको यूज़ करते हुए managers in any organization can plan, evaluate, and make decisions on a variety of levels. So there can be information systems at different levels of organization, right? और उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये होती है कि डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि डिफरेंट लेवल्स पे जो मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स डिफरेंट होती हैं. ओके, MIS is a mechanism for turning data into information which provides support for the manager who must turn the information into decisions and plan. So एक और इम्पोर्टेंट फीचर मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डेटा मौजूद है, ठीक है, उस डेटा को एनालाइज करके ऐसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाए कि जिसको मैनेजर्स इस्तेमाल कर सके फॉर द सेक ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है. इसके बाद इसकी एक और डेफिनेशन जो आर्टिकल बताता है वो ये है कि an MIS or an information system is any system of people, equipment, documents, procedures, and communication which gathers, stores, processes, and presents information
for the purpose of assisting managers with a variety of managerial functions. ठीक है जी। तो अब इस डेफिनेशन को भी अगर हम देखें तो इस डेफिनेशन में कहीं पर भी ये इंडिकेट नहीं किया गया कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ने लाजिम और कंपल्सरली कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करना है। और यही वो चीज़ थी कि जो कि हमने पहले भी डिस्कस की, दैट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम may or may not be automated. That is, an information system may or may not use computers. So basically, there are few fundamental components of any information system. Okay, what are these components? First component is inputs. That is the data which are fed into the system. The second component is the data processing. Now, what is data processing? It is the component through which data are aggregated to provide meaningful information. And then what is the third component? The third component is outputs. ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो आउटपुट होती है नॉर्मली इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। ठीक है। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जो है वो आप डेटा को एनालाइज करते हैं और डेटा को एनालाइज करने के बाद आप उस इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। ठीक है। The procedures to control the flow and accuracy of inputs and outputs tie the system together. ठीक है। इसका मतलब जो है वो ये हो गया कि आपकी जो इनपुट्स और आउटपुट्स होती हैं, ठीक है, इनको जो चीजें एक साथ कनेक्ट करती हैं so that you get the desired output is called the procedures. And what these procedures does, what these procedures control the flow and accuracy of these two fundamental components, that is input and output. अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन जो हाईलाइटेड लाइन है उसको अगर आप देखें तो वंस अगेन वो दोबारा वही बात रीट्रेट की जा रही है, दैट आर MIS और simply IS, ठीक है, is not a computer and in fact need not be computerized at all. And MIS is neither a problem solver nor a decision maker. अच्छा, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से कि जब हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि ये मैनेजर्स को ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि जिससे वो अपनी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प ले सकें। ठीक है। कभी भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे लिए ना तो कोई ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और ना ही हमारी जगह पे डिसीजन ले सकता है। ठीक है। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ऑलवेज just a tool that can help us to solve problem or can help us to make decisions, but an information system is never ever is a problem solver or a decision maker itself. ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, it's very very important point. Now, the identification of need and organizational readiness. ठीक है, symptoms indicating a need to review the current methods of information gathering and reporting. अब यहाँ पे जो ऑथर बात कर रहा है वो ये कि जनाब हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम से इससे जो नीड्स जो है फुलफिल करनी है वो नीड्स क्या है, और दूसरी चीज़ जो है जो एस्टेब्लिश करनी है वो ये कि क्या एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए रेडी है या नहीं। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड एंड ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस। ठीक है। अच्छा, अब ऑथर जो है वो कहता है कि देयर आर सर्टेन सिम्टम्स, ठीक है, दैट वी नीड टू वॉच फॉर, ठीक है, that would tell us whether the current methods of information gathering and reporting need some new system or whatever. The first symptom is the current system is unable to generate
the information required by management or by funding sources for planning and accountability. तो पहला साइन, ये पहला सिम्टम जो इस बात को बेसिकली हमें बताता है कि हमें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत है, वो ये है कि करंट सिस्टम जो है वो हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट करके नहीं दे पा रहा, कि जो कि मैनेजमेंट को चाहिए. व्हाट इज द सेकंड सिम्टम? Information is inaccessible. That is, the required data exists, but the retrieval processes require inefficient use of time and manpower. कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, डेटा मौजूद है, उसको जो है वो बेसिकली एनालाइज भी करता है, ठीक है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो प्रोसीजर है उस इंफॉर्मेशन सिस्टम का, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इनएफिशिएंट है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम कंज्यूम होता है और मैन पावर बहुत ज़्यादा लगती है. द थर्ड सिम्टम इज each of different components of the operation, especially those which perform the same function, has a different information system in place. हमें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक इंटीग्रेटेड सिंगल इंफॉर्मेशन सिस्टम उस वक्त भी रिक्वायर्ड होता है जब हम ये देखते हैं कि जनाब कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद हैं, जो कि जब एक साथ काम करना हो या जब इंटीग्रेटेडली फंक्शन जो है वो करना हो, तो वो इंटीग्रेटेड फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे. फोर्थ सिम्टम इज एजेंसी. अच्छा, जरूरी नहीं है एजेंसी, एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेम थिंग. So if the organization's policies, objectives, or programs are changed, but the design of the present system was based on the previous philosophy, that means you will need a new information system. तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स या जो डिफरेंट प्रोग्राम्स जो आप रन कर रहे हैं वो चेंज हो गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि ओल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो अब काम नहीं कर सकेंगे, एंड यू विल नीड टू डिजाइन एंड यू विल नीड टू कम अप विद द न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. A form is designed for every need that arises. Paperwork has become unmanageable. अच्छा, अब आपने जो डिफरेंट आपके जो मैनेजमेंट लेवल्स हैं, ठीक है, उस वहाँ पर जो है वो अगर आपने जो आपको टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए जनाब आपने जो है वो डिफरेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, नॉर्मली जो है वो जो ये जो फॉर्म जो होता है, ये फॉर्म जो है वो इट्स काइंड ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म. अगर आपने बहुत सारे फॉर्म्स या बहुत सारे रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो है वो अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जनरेट कर लिए हैं, दिस इज नॉर्मली अ सिम्टम दैट यू नीड अ न्यू एफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है. द लास्ट सिम्टम that tells you that you need a new and efficient information system is the duplication in recording and reporting. ठीक है. तो अगर आप जो डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन आ रही है, उस एफर्ट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन आ रही है, दैट मीन्स दैट you need a new information system or you need to redesign the existing information system. Okay, now अब यहाँ पे ऑथर जो है वो कहता है कि जनाब के सिंपली जो है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक है, कि जनाब हमें जो है वो एक नए इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत है, वो काफ़ी नहीं है. ठीक है. एक ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ को भी असेस करना होता है कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन एक नए इंफॉर्मेशन सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए रेडी है या नहीं. दैट इज व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ you want to either implement a newly designed information system or if you want to redesign the current information system for an organization. So what are the few important elements that can be used to judge the level of organizational readiness for the new information system? The first element is the supportive organizational climate. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, जो क्लाइमेट है, वो ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए सपोर्टिव नहीं है, देन दिस इज द फर्स्ट साइन that the level of organizational readiness for the information system is low. The second element to measure the organizational readiness is the
लेवल ऑफ विलिंगनेस ऑफ मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट विलिंग है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है वो या तो रीडिज़ाइन किया जाए या एक नया इंफॉर्मेशन सिस्टम लेकर आया जाए। अगर मैनेजमेंट विलिंग नहीं है, वंस अगेन ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस इज लो। द थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज द टाइमिंग ऑफ द चेंज। ठीक है, इससे पहले कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको रीडिज़ाइन करे या एक नए इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, it is very important that an organization watch for the timing of the change। ठीक है, हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और भी कोई चेंज इनिशिएटिव जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में आप तब्दीलियां कर रहे हो, वर्क फोर्स में जो है वो आप चेंजेस कर रहे हो, अपने वर्क प्रोसीजर्स में जो है वो आपको चेंजेस कर रहे हो। और ठीक है, तो इन दैट केस आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको रीडिज़ाइन करेंगे या एक नया इंफॉर्मेशन सिस्टम लेकर आएंगे, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो हमें इस चेंज की जो टाइमिंग है उसको केयरफुली डिसाइड करना होगा। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सटेंसिव चेंजेस एक ही वक्त में जो है वो अगर करें तो हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े और उसके नतीजे में ये जो हम नया सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं या पुराने सिस्टम को रीडिज़ाइन कर रहे हैं, ये जो हमारी एफर्ट है ये सक्सेसफुल ना हो सके। सो टाइमिंग ऑफ द चेंज इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर that can tell you the level of readiness of an organization for the new or a redesigned information system. Moving forward, the article talks about various design consideration। ठीक है, और उससे पहले जो है वो हमको ये बताता है कि अगर हम जल्दबाजी में एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को रीडिज़ाइन करने की कोशिश करें या एक नया इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन करने की कोशिश करें, ठीक है, तो उसके डिसएडवांटेजेस या उसके जो बेसिकली नुकसानात होते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो क्या हो सकते हैं। So if you look at your screen, these are the consequences of a hasty or the a system design that was made in a rush. First, the data collected were not the data needed. आप वो data collect कर लेंगे जिसकी जरूरत नहीं थी. Reports were difficult to interpret and were therefore meaningless. ऐसी information generate करेंगे कि जिसको interpret करना भी difficult है और जो normally जो है वो meaningless है। ठीक है, द सिस्टम वॉज इनफ्लेक्सिबल। एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करेंगे कि जो कि चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट ना कर सके। ठीक है, रिपोर्ट्स फॉर ऑफ लिटिल यूज इंटरनली एज इट डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। जो रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन आप जनरेट करेंगे वो रिपोर्ट जो है वो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी। ठीक है, too much staff time was spent on increased paperwork, thereby reducing the time available for services। आप बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम वेस्ट करेंगे उस एक पेपर वर्क के ऊपर विद द इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जिसका नतीजा जो है वो ये होगा कि आपका पास जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स के पास बाकी दूसरे काम करने के लिए जो टाइम अवेलेबल था वो कम हो जाएगा। ठीक है, erroneous data were entered into the system, that is the input to the information system is going to be erroneous। बहुत सारी जो है वो गलतियां होंगी। तो अब जब इनपुट गलत होगी तो उसका मतलब जो है वो ये है कि जो प्रोसेसिंग है और प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट जनरेट होगी वो भी गलत होगी। Now the article says that careful, detailed planning followed by testing and revising is a must। तो वो कहता है कि जनाब कि अब आपको जब इंफॉर्मेशन सिस्टम या तो रीडिज़ाइन करना है या नया इंफॉर्मेशन सिस्टम लाना है तो ज़रूरी है दैट यू डू अ केयरफुल डिटेल प्लानिंग। और प्लानिंग के बाद जो आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, उसको जो है वो आप टेस्ट करें और वक्त गुजरने के साथ साथ, ठीक है, उसको आप रिवाइज भी करें क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज होती हैं, स्टैटिक नहीं रहती। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम must be flexible enough to meet those changing requirements। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो आर्टिकल बात करता है कि जनाब उन डिज़ाइन कंसिडरेशंस की
ठीक है, that can actually prevent the consequences that we have just discussed above. ठीक है, यानी कि जो डिजाइन कंसिडरेशन, ये वो डिजाइन कंसिडरेशन है कि जिनको अगर आप फॉलो करें तो ये जो हमने ऊपर जो प्रॉब्लम बताई थी, ठीक है, कि जना आपके जल्दबाजी में जब आप एक सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उससे जो है आपको क्या ड्रॉबैक्स होते हैं या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आप फेस करते हैं, तो ये वो डिजाइन कंसिडरेशन है कि जो कि इन कॉन्सिक्वेंसेज को जो है वो रिमूव कर सकती है या उन ड्रॉबैक्स को खत्म कर सकती है। पहली जो डिजाइन कंसिडरेशन है वो क्या है, असाइन अ की पर्सन टू कोऑर्डिनेट द प्रोसेस। ठीक है, the success of a system is highly influenced by the presence of a key person, someone motivated to see the project through to completion and to achieve result. अब जनाब अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है विद रिस्पेक्ट टू द डिजाइन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पिक अ पर्सन, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस रखता हो, ठीक है, जिसका लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है वो बहुत हाई हो, ठीक है, कि जनाब कि मैंने जो है वो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये जो प्रोजेक्ट है, दैट इज द इम्प्लीमेंटिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको जो है वो मैंने जो है वो शुरू करना है और उसके बाद मैंने उसको सक्सेसफुली खत्म भी करना है इन अ वे दैट दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एबल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, recommended qualities for this individual, ठीक है, this individual must be a statesman, a sociologist, a politician and a psychologist। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम एक इस बेसिकली इसकी इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट्समैन हो, सोशियोलॉजिस्ट हो, ठीक है, दैट इज जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको जो है वो बहुत ज़्यादा समझता हो, अच्छे से समझता हो, ठीक है, पॉलिटिशियन हो, ठीक है, ताकि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम आप जब आप डेवलप करने के लिए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, that means that you are going to bring significant change in the organization। ठीक है, so organizational politics will come into play। और अगर ये की इंडिविजुअल जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में एक्सपर्टीज नहीं रखता, so it will be very very difficult for this key person to actually achieve success with the new information system। and more another thing is that he should be a psychologist। ठीक है, लोगों की साइकोलॉजी को समझना जो है बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोगों की साइकोलॉजी को नहीं समझते तो आप उनसे जो है वो काम नहीं करवा सकते कि जो कि आप उनसे करवाना चाहते हैं। ठीक है, then this person should be able to build trust and this person should have the ability to stay cool under pressure and this person must also be willing to compromise। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो आपको टफ नहीं होना चाहिए कि जनाब कि नहीं मैंने जो एक बात कह दी है अब बात से जो है मैंने पीछे नहीं हटना। ठीक है, देयर आर मेनी ओकेजन्स वेयर यू विल नीड टू make compromises, so if you are too tough on your stance it will be very difficult for you to go through and implement the system successfully। ठीक है, this person must be accepted and respected within the organization। तो एक ऐसा शख्स हमने चूज करना है जिसको ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें तमाम लोग जो है वो ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हो बल्कि उसको रिस्पेक्ट भी करते हो। एंड देन दिस पर्सन शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद एंड मोटिवेट ऑल लेवल्स ऑफ स्टाफ। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि जनाब के ये जो शख्स है, ठीक है, ये ना सिर्फ एफिशिएंटली जो है वो कम्युनिकेट कर सकता हो तमाम स्टाफ के साथ एट ऑल लेवल्स, बल्कि इनको मोटिवेट भी कर सकता हो। ठीक है, द सेकेंड design consideration is that you need to tailor the system to the needs of the organization। ठीक है, तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो है वो या कोई एक अप्रोच ऑफ डिजाइनिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इस्तेमाल की जा सके। दैट मीन्स कि आप जो भी सिस्टम जो है वो उसको आप जब इम्प्लीमेंट करने के लिए जाएंगे, ठीक है, so you will need to actually tailor or you will need to change this information system to meet your unique organizational requirements। Now the article states that one approach to actually tailor the system to meet the organizational need is to identify specific questions that the MIS should address। ठीक है, तो आपने
करना यह है कि जनाब आपने देखना है कि जनाब जो हम इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट आर द क्रिटिकल क्वेश्चन, ठीक है, दैट वी वांट दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम टू आंसर, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दी these questions we should tailor or we should modify the information system to meet our organizational requirements. Communicate with and involve all levels of staff. जब कभी भी एक नया इंफॉर्मेशन सिस्टम आप डिजाइन कर रहे होते हैं या एक पुराने सिस्टम को डिजाइन कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ आप आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ है तमाम लेवल्स पर, उसको जो है वो आप इन्वॉल्व करें, उसके साथ आप कम्युनिकेट करें, ठीक है, सिस्टम जो आप इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें क्लियरली उनको जो है बताएं, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आप स्टाफ को जो है वो ये भी बताएं कि जनाब के एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो हम ये लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इसको लाने के बाद जो है वो जो चेंजेस आएंगे उन चेंजेस जो हैं वो किस किस को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, व्हेन यू टेल देम देन दे आप बिकम कंफर्टेबल, क्योंकि जनाब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ये इस तरह के जो चेंजेस लेकर आएगा, ये जो है इतने लोगों को इम्पैक्ट करेगा, सो दैट वी कैन कम अप विद द एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज, क्योंकि तमाम के तमाम जो लेवल पे जो स्टाफ है उसको जो है वो हमने किस तरह से जो है वो सेटिस्फाई करना है विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू सिस्टम। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तमाम स्टाफ के साथ जो है कम्युनिकेट करें। अब what are some forms of the communication that you can use for this particular communication? You can use progress reports, you can use written documentation, you can use some sort of detailed training and retraining, and you can also use the formal and informal feedback mechanism. These are all the types of communication that you can use to communicate with the staff. The next design strategy is that you should keep the system simple, practical and flexible, ठीक है। सिस्टम को जो है बहुत ज्यादा जो है वो आप कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, ठीक है। इट शुड बी a type of system that is understood, accepted, useful and manageable at all levels of an organization, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बात की थी कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो है एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारा पर्पस जो है वही होता है कि हमने जिस लेवल के लिए ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है डिजाइन किया है, उस लेवल पे उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को तमाम के तमाम जो लोग हैं वो समझते हो, एक्सेप्ट करते हैं एंड दे फाइंड इट यूजफुल एंड मैनेजेबल, ठीक है। In this regard, we should also determine the optimal reporting frequency of this information system, ठीक है। We should also poll the report users periodically, ठीक है। So for example, कि जनाब हमसे पूछेंगे कि जनाब what information is utilized, ठीक है, so that we can actually modify the information system if needed. We should avoid duplication, ठीक है। Then we should have some realistic uh, assumptions, ठीक है, or realistic we can say estimates about the resource requirement, ठीक है, what kind of resources this system is going to need। अगर आपकी जो ये जो रिक्वायरमेंट है या जो एस्टिमेट है ये अगर रियलिस्टिक नहीं है, once again the system may not work for you। Then this MIS system must be flexible and modifiable, ठीक है। ये हमने बात पहले की थी कि जनाब कि आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी नीड्स जो है वो चेंज होती रहती हैं। That means that if the MIS or the information system is not flexible to accommodate these changing requirement, it means that this information system is not going to be much beneficial for you, ठीक है। The next consideration is design and implement incrementally। अच्छा, ये हमने बात पहले भी की थी कि ये जो आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन जो होता है इसकी जो है दो अप्रोचेज होती हैं। एक अप्रोच जो होती है वो होती है जनाब आपके पास जिसको हम कहते हैं बिग बैंग अप्रोच, और एक अप्रोच जो है होती है जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑथर आर्टिकल का वो ये रिकमेंड करता है कि आप अगर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को रीडिजाइन कर रहे हैं या एक नया इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ रहे हैं, देन यू शुड डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट इंक्रीमेंटली। ऑथर जो है वो इस बात को जो है वो प्रपोज करता है या इस बात को जो है वो रिकमेंड करता है कि जनाब कि अगर जो है ये डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंक्रीमेंटल होगा, ठीक है, तो वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज
that this information system is bringing into your organization, that can be reduced and you can actually manage this change effectively. Then the other design strategy, replace outmoded system. आर्टिकल का जो ऑथर है वो कहता है कि जनाब कि एक दफ़ा जो है जब आप नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दें और ये आप देखें कि जनाब आपका जो नया सिस्टम है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अचीव कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद आपके जो पुराने सिस्टम हैं, ठीक है, उन पुराने सिस्टम को जो है वो आप कंप्लीटली, ठीक है, उन्हें जो है आप ऑफलाइन कर दें या उनको आप इस्तेमाल करना बंद कर दें या उनको नए सिस्टम के साथ आप कंप्लीटली रिप्लेस कर दें। इस चीज़ को आप नहीं देखें कि जनाब के जो पुराने सिस्टम थे, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन या जो आपका जो स्टाफ था वो उनके साथ कितना कंफर्टेबल था। Once the new information system is able to achieve the desired results, the the old system must be replaced completely. Unexpected results, आपका जो information system design है, ठीक है, it is very much possible that it provides you with some unexpected results, ठीक है, ये वो results होते हैं कि जो कि आपने जो है for example design के बाद जो है वो सोचे नहीं होते, but these are the results that can be achieved after implementing either a new information system or design or redesigning the existing information system, ठीक है. So for example the author says that the expected results of MIS design include meaningful management reports, efficient data and information flow, and streamline पेपर वर्क, ठीक है, ये तो वो रिजल्ट्स हैं कि जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि जनाब हमने जब इंफॉर्मेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है तो ये वो रिजल्ट्स हैं कि जो कि हमें अचीव होंगे. नाउ व्हाट आर सम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दैट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन bring us, ठीक है, these can include clarification of organizational goals, decision criteria and organizational relationships, ठीक है. एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ठीक है, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और वो आपको जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू करता है, ठीक है, इट आल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो है एक्चुअली वाकई गोल्स क्या हैं, बिकॉज वंस दे सी द डेटा, वंस दे सी द इंफॉर्मेशन क्लियरली, ठीक है, तो उनके लिए जो है वो अब इस बात को समझना जो है वो आसान होता है कि जनाब कि ओके पहले मैं समझ रहा था कि शायद मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो ये है, ठीक है, बट वंस आई स्टार्ट गेटिंग द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम, नो माय माइंड हैज चेंज. Now I'm much clear, my mind is much clear to see what my real organizational goals are. Similarly, I'm now able to see the real decision criteria and have a clear understanding of the various organizational relationships. In the rest of the article, they discuss a practical application of the MIS design in an organization called the Benjamin Rose Institute. Okay, now in this article, I have highlighted some of the important points that they have used, the similar design considerations that the article has discussed. So what I would like you to do is that you should go through this reading, especially this particular case, and see how these various design considerations that have been described in this article have been used in this particular organization. They have, you can see that I have highlighted at various, the rest of the article talks about the practical implementation of these various design considerations that we have just discussed in a particular organization. And I have highlighted at various points of the article where the different design considerations have been actually used. So what I would like you to do is that you should go through the rest of the article and you see how this organization has implemented various design choices discussed in this article. Okay, and pay particular attention to the parts of the article that I have highlighted.